Hey everyone, good morning to all guys. Hello, guys, am I audible? Yes, Rahul sir, you are audible. Can we wait for 5 more minutes? Or shall we start? Okay, sure. Just wait for 5 more minutes. Yeah. Yeah, I think the candidates must be joining. Okay, So we can wait for 5 minutes. Yeah. After 5 minutes, you can start the batch. sure. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay, guys. So let's get started because I think we have only 1 hour, so let's not waste our time. Okay, fine. So hello everyone. Good morning to all guys. So I hope you all can. Okay, let me share my screen first. So I hope you all can see my screen now. Just give me a confirmation, guys. Come on. Yes, sir. So guys, so आज से जो सेशन होगा that session will be every session will be recorded and that will be provided to you ताकि आप घर पे भी practicals कर पाओ. And parallelly what I'm expecting guys, जो भी आप practicals करोगे, each and every practicals you have to share your screenshot in the WhatsApp group. See, we have a WhatsApp group batch by batch, and whenever you are doing the practice, you have to share the screenshots that whatever you have done. कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, यू कैन ask your question here, sir, something we are getting any issue or any of the functionality. So whatever the WhatsApp group that we have, so that WhatsApp group we have to utilize. ठीक है, डेली के डेली. So whenever we are going to learn the functionality, you have to share the screenshots. Is it okay? Everyone, just give me a confirmation with okay. Come on, everyone. I can see only Khalid. Or what about the rest? Yeah, sure. फाइन. सो फर्स्ट लेट मी नो गाइस, आप सबने अकाउंट सेल्सफोर्स अकाउंट क्रिएट कर लिया है और इज इट पेंडिंग? कम ऑन, आई विल शो यू. Done with it. एनीवन जिसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया अब तक? कम ऑन गाइस, जस्ट स्पीक अप. अगर आपने कोई किसी ने अकाउंट नहीं बनाया, यू कैन से, बिकॉज देन आई एम गोइंग टू स्किप दैट पार्ट. अदरवाइज आई विल जस्ट कंटिन्यू. कम ऑन. So Khalid, so I what have about that? done. I haven't created the account. You haven't created right now. Okay, Yes. okay. This No is my worry. first day, so No worry, it's no okay, fine. So guys, so let me just remind this thing. So for creating the account, we have to go for developer.salesforce.com sign up. So once you go for this, it's just like a Flipkart. जैसे Flipkart पे या Facebook पे account बनाते हो वैसे ही है. You have to provide your first name. Like I can provide my first name, I can provide my last name, I can provide my email, I can provide the job role, developer, company name, I can give an film industry. Country, I can provide the India. Fine. Postal code, any postal code you can provide it. Username, whatever the email address that you have taken, the same email address you can take in the username also. That is also correct. Right? Accept the terms and condition and just click on this sign me up. जब आप साइन मी अप पे क्लिक करोगे ना, यू विल गेट ए लिंक. जो भी आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा, ऑन दैट ईमेल एड्रेस यू विल गेट ए लिंक जस्ट लाइक दिस. आई गॉट दिस. वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट. यही आपको ईमेल आएगा. जैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे, फिल करने के बाद जब आप साइन मी अप करते हो, तो उसके 2 से 3 मिनट के बाद, नॉट इंस्टेंटली नहीं आता है वो, 2 मिनट का टाइम लगता है. 2 मिनट के बाद यू विल गेट दैट ईमेल, welcome to Salesforce, verify your account. Fine. So let me share this URL to all of you in the chat boxes. Fine, you can take it. And from here, what we have to do, we have to click on, see, मैंने एक बनाया था July online morning 8:30 AM at the gmail.com. It's a username. इसके थ्रू ही I will log in here. Let's click on this verify account. Once I click on this verify account, it will ask me, obviously what the password reset करना पड़ेगा. So here we have the password. So I can reset the password now. मैंने password reset कर लिया. I have set the password. Here we have a city. I can answer a question just because whenever suppose मेरा password कभी expired हो गया या आपने password invalid डाल दिया, sometimes with this security questions you can retrieve your password. So then go for change password. Once you change the password,
it will be successfully logged in inside the Salesforce. And that is the first screen you will get it once you are logged inside the Salesforce. Everyone. Now, Salesforce के दो views है. Let's talk technically each and everything. So if you can go for the, let me open the paint. So we in Salesforce we have two views, right? Two views we have in Salesforce. Salesforce को हम short में SFDC भी कहते हैं guys. So sometimes I used to write SFDC. SFDC it means that is also a Salesforce. The first view is what? The first view here we have is classic view. And second view is what? Lightning view. So these are the two views we have, classic view and lightning view. So classic that has been used, ये आपको use हुआ था आपको 1999 से almost 2014 तक, 14 तक. But 14-15 के बाद से 2014 के बाद से now at the end, or you can say present, what we are using the lightning view. और कभी भी आप interviews के लिए भी जाओगे ना तो 99 नहीं 100% they will only ask about the lightning Salesforce. But don't worry, whatever the course we are going to complete, that will be based on the lightning, because classic का भी use नहीं है. No one is using the classic. Everything we have to use inside lightning, everything we have to develop inside lightning. So everything we see, this is the lightning view of the Salesforce. If you want to move into classic view, I can just show you the option, but we are not going to learn anything in the lightning. You can see, if you can see here we have the option switch to Salesforce Classic. You can see here we have the option switch to Salesforce Classic. Once you click on this icon, here you can see switch to Salesforce Classic. But don't worry guys, this option is not required for us, because everything we are going to learn inside lightning, if we are talking about the cloud computing, Salesforce future is based on the lightning. Okay, everyone. Now, as we all know that Salesforce is a cloud computing language. It means whatever the data that we have inside the Salesforce, that will be stored on the cloud. अभी cloud क्या है? It's a virtual machine. वो virtually की data save होता है. हमें कभी भी cloud को we are not going to maintain. They will be maintained by Salesforce itself. We are not going to maintain them. उसके maintenance का काम, उसके data storage का काम, उसके capacity का काम, ये इसे हमें handle नहीं करना है. That will be handled by Salesforce. For here, we just have to develop the functionality, and client has to use that functionality whatever you have developed. जो आपने develop किया है, client उसको बस use करेगा. Fine. इससे ज्यादा क्लाइंट को मतलब नहीं है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा क्लाउड पे कैसे जाएगा, because cloud will be totally maintained by the Salesforce. Fine. Now, if we are talking about, so currently I have created an account. सबसे पहले हम जाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है उस अकाउंट्स के डिस्क्रिप्शंस क्या है, उस अकाउंट्स के इंफॉर्मेशंस क्या है. सो फॉर इंफॉर्मेशन वी हैव टू सी, आई कैन राइट नोट डाउन द हियर. Right, so for company information, where do you have to go? I can give you the path parallelly, guys. I will share this notes to you also, don't worry. So we have to go for setup, then we have to search. What we have to search? Company information, and then inside that we have all this company information. See, so where is the setup? So remember, this will be known as, this is setup. So whenever I will talk about setup, so this is setup. So I have to go for, click on this wrench icon. This is what? This is gear icon. If I will go, if I will click for this gear icon, here we have the option of setup. इस पे क्लिक करते हैं. जब हमने इस पे क्लिक किया, you can see here in our quick find search box, here is the search box, और यहाँ पे मैंने क्या बोला सर्च करने को? search for company information. तो यहाँ पे सर्च करो company information. So guys, Salesforce पढ़ने से पहले, Salesforce सीखने से पहले हमें Salesforce के बारे में जानना होगा. आखिर Salesforce हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जब हमें उसका आइडिया मिल जाएगा, then we can go
देन वी कैन गो एंड स्टार्ट डेवलपिंग. सबसे पहले हमें सेल्सफोर्स को जानना होगा ओवरऑल कि यूआई पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या क्या हमारे बेनिफिट्स के लिए है, क्या क्या क्लाइंट्स के बेनिफिट्स के लिए है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट. सो इफ वी आर क्लिक ऑन दिस कंपनी इंफॉर्मेशन, तो आप देख सकते हो कंपनी का नाम क्या है, HDFC. दैट इज द कंपनी. Fine. Who is the primary contact for person for this company? So you can see my name. Now if you can see here instance. Instance is what? This is the name of the server जहां पे आपका data store होगा. That is AP27. AP27 इस पे आपका डेटा स्टोर होगा. अभी हम कौन सा एडिशन यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं डेवलपर एडिशन, क्योंकि हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना है. सो इट विल बी अ डेवलपर एडिशन. और the most important here we have the licenses. Salesforce में आप कभी भी काम करोगे, here we have so many licenses, but सब किसी पे ध्यान नहीं देना. You only have to take care about Salesforce license. हमें केवल Salesforce license पे ध्यान देना है. You can see, अभी आप देखोगे Flipkart में जाओगे, Flipkart में you can create multiple accounts. कैसे? Because Flipkart के लाइसेंस फ्री हैं. आप चाहो तो 10 अकाउंट बना सकते हो. Amazon में आप 10 अकाउंट बना सकते हो, राइट? अगर आप चाहो फेसबुक में, तो बहुत सारे लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं. फेक अकाउंट्स भी बहुत सारे बना सकते हो, बट वी कैन नॉट गो एंड क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स अमेजन प्राइम और मे बी नेटफ्लिक्स. व्हाई? बिकॉज दे आर चार्जेबल. नेटफ्लिक्स इज चार्जेबल, अमेजन प्राइम इज चार्जेबल. व्हाई? क्योंकि उसके लाइसेंस फ्री नहीं है. यू हैव टू पे मंथली सब्सक्रिप्शन, ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है नेटफ्लिक्स के लिए, अमेजन प्राइम के लिए, राइट? Exactly here in Salesforce, the license is not free. That is not free of cost, because Salesforce के license आपके chatting के लिए use नहीं होता, just like we used to do on maybe WhatsApp or maybe Facebook or maybe Twitter. So इसके जो licenses होते हैं, that is only used for business perspective. प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, प्रोडक्ट्स के फीचर्स के रिगार्डिंग बात करना होता है, प्रोडक्ट्स में क्या इशू है उसके रिगार्डिंग बात करना होता है. सो फॉर दैट we have the license Salesforce, but that is a paid license. And don't worry, आपको नहीं पे करना है. You just have to develop the functionality. Your client has to pay to Salesforce. जो आपका क्लाइंट होगा ना, जिसके लिए आप काम करोगे, जो आपका कस्टमर्स होगा जिसके लिए आप काम करोगे, वो आपके लिए आपको Salesforce को लाइसेंस के लिए पे करेंगे, and they will hire you as a developer. वो आपको डेवलपर्स एज ए डेवलपर हायर करेंगे, and you have to develop functionality for them. That is what the real picture is. Fine. But जब आप फ्री ऑर्ग बनाते हो ना, तो Salesforce आपको लर्निंग पर्पस के लिए बाय डिफॉल्ट आपको 2 लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है कि आप सीखना चाहते हो. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. Salesforce will provide you 2 Salesforce licenses, जिसमें कि एक लाइसेंस यूज हो चुका है and 1 license is remaining. Fine. कैन सी किसने किया एक लाइसेंस कंज्यूम किया? you can see here name Rahul. So 1 license has been consumed by Rahul, because already we have logged in inside the Salesforce and Rahul has already consumed the license. इसके अलावा 1 more, अगर आप चाहते कोई एक मैनेजर हो या मे बी कोई एक दूसरा डेवलपर हो, किसी एक और यूजर को if you want to provide the licenses, we can provide it. Don't worry, we'll see in future how we can provide the licenses. But definitely this is all about the company information. यहाँ पे आपका कंपनी का आपका एड्रेस आएगा. फाइन. सी टाइम जोन है, कंपनी कौन से डिफॉल्ट लैंग्वेज पे काम करती है, फोन है या कंपनी का. फाइन. सो हियर वी हैव ऑल द डिटेल्स ऑफ कंपनी. हियर वी हैव द डिटेल्स ऑफ द सर्वर जहां पे आपका डेटा सेव होगा. तो गाइस, यहां तक किसी कुछ पूछना है? कम ऑन. आई एम जस्ट शोइंग यू द कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी डिटेल्स. एवरीवन, कम ऑन गाइस. यस और नो? No, sir. Fine. Now, as I told you, here we have all the data saved. अभी आप बोलोगे डेटा, लेकिन बट आप बोल रहे हो डेटा तो सेव्ड, बट डेटा इसमें है कहाँ है इसके अंदर डेटा? Of course, we have lots of data we have, and lots of data you can also create. कैसे दिखेगा? तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि if I will go for the Google, that is the Google App Launcher, right? Google App Launcher. अब गूगल का जो डेटा कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली बात है, गूगल के सर्वर पे होगा. यहाँ पे जो जितने भी ऐप लॉन्चर में जाओगे, ये सब एप्लीकेशन किसके हैं? गूगल के हैं. वैसे ही आप सेल्सफोर्स में आते हो, दिस इज सेल्सफोर्स ऐप लॉन्चर. अगर आप इस ऐप लॉन्चर पे क्लिक करते हो, इसके अंदर आपके सारे एप्लीकेशंस हैं. लेट मी गो रिफ्रेश इट फर्स्ट.
I think this is because of internet issue. Fine. If I click on this app launcher, you can see here we have all the applications. जैसे Google's के application है, वैसे Salesforce के भी application है. Fine. If I go for view all, see here we have all Salesforce app. These all are the application. Fine. Exactly here in Salesforce, in YouTube, here we have the. Now अभी मुझे अगर Google में data check करना कहा जाता है, हम YouTube पे जाते हैं. जब हम YouTube पे जाएंगे तो I can see कि we have data inside the YouTube, and the data is in the video format. जो YouTube पे data है वो क्या है आपके video format में है. Fine. Exactly. अभी अगर मैं किसी एप्लीकेशन पे जाता हूँ, let's take sales application पे गया, तो inside sales application we have the data now. See, we are in the sales application now, and here we have all the tabs. Here we have all the tabs now. I can click for the opportunity, and you can see here we have data. ये आपका आ गया all opportunity. Here we have the data. अभी ये data कहीं तो सेव होगा ना. ये मेरे लोकल मशीन, मेरे लैपटॉप में तो सेव नहीं है. ये कहीं ना कहीं कहाँ पे सेव है? ये आपको किसी सर्वर पे सेव्ड है, और हम उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, उस सर्वर से मुझे डेटा मिल रहा है. दैट इज व्हाट हियर वी हैव. और मैंने आपको सर्वर का नाम भी दिखाया. क्या है सर्वर का नाम? सर्वर का नाम है AP27. चेक करते हैं क्या AP27 एग्जिस्ट करता है. वी कैन चेक इट. वी कैन गो फॉर trust.salesforce.com. trust.salesforce.com. दिस इज, यहाँ ये वो आपका URL है जहां से आप Salesforce के सर्वर्स को देख सकते हो. Scroll it down. Here we can go for sales and service. अभी हम किसके अंदर हैं? We are in the sales application. So let's go for sales and service. Click on that status. Click on that status. Once I click on the status, I can see here. So guys, मेरे सर्वर का नाम क्या है? मेरे सर्वर का नाम है जिससे मैं कनेक्टेड हूं, जिससे मेरा और कनेक्टेड है, जिस जहां पे डेटा अवेलेबल है, दैट इज AP27. चेक करो. डू वी हैव AP27? ऑफ कोर्स हियर वी हैव AP27. सो करेंटली हम APC, इस Salesforce के पास इतने सारे सर्वर्स हैं. There are so many servers here we have for Salesforce. But हम किसे कनेक्टेड हैं? Currently my org is connected to this AP27 server. मतलब मेरा जो भी डेटा होगा, इसके अंदर जितने भी डेटा बनेंगे, 10,000 lakhs of record, millions of record, जो भी millions of record होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो सब के सब आपके AP27 पे जाएंगे, बिकॉज हम इस सर्वर पे currently connected है. Fine. So this is the server name that you can identify from the status.salesforce.com. Fine. आगे बढ़ते हैं फिर. Let's go. Now here we have. अभी सबसे पहले अभी हमने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया. Here we have. Now अभी हमें डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे करना है? तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले लेट्स क्रिएट वन मोर यूजर इनसाइड Salesforce. बिकॉज आप देखो, आप कभी भी किसी कंपनी में जाते हो, सपोज आपने TCS ज्वाइन किया, तो TCS में आप अकेले काम नहीं करते हो ना, आपके साथ आपकी टीम काम करती है. आप अकेले डेवलपर नहीं हो, आपके साथ कुछ और डेवलपर्स होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे, आपके सीनियर मैनेजर्स होंगे, आपके लीड्स होंगे, आपके डायरेक्टर्स होंगे, राइट. एक हायरार्की जाती है. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी आप Salesforce में आप अकेले काम नहीं करोगे. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू गो, यहाँ पे वी हैव टू क्रिएट यूजर्स. अभी आप अकेले हो इस पूरे ऑर्ग में, अभी आप अकेले हो. नाउ सिंस Salesforce हैज गिवन 2 लाइसेंसेस, Salesforce से कितने लाइसेंस दिए हैं? 2 लाइसेंस दिए हैं ऑलरेडी. एक तो आप हो, दूसरा कोई और भी हो सकता है. लेट्स क्रिएट सेकेंड यूजर एंड लेट्स प्रोवाइड देम अनदर लाइसेंसेस. तो कैसे बनाएंगे? सो गाइस, इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है. सो फॉर आई कैन प्रोवाइड दिस दैट क्रिएशन ऑफ यूजर in SFDC. What is SFDC? Creation of user in Salesforce. क्या करना होता है? सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे? सेटअप पे. फिर जाएंगे हम, उसके बाद सर्च करेंगे what? Users. I will search for users. Then I will click on new user. Then what we have to do? Then fill all required details. I will show you, don't worry, I will show you. Fill all required details and then save it. See, here we have save. So these are the process we have to follow whenever we have to create a user inside Salesforce.
सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सेटअप पे चलते हैं. विल गो फॉर हियर इज द सेटअप गियर आइकन आई हैव शोन यू. ये आपका सेटअप है. आप सेटअप पे गए, सेटअप ओपन हो गया. उसके बाद क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है यूजर्स. सो आई कैन गो देयर, यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट, यूजर्स. आई कैन सर्च फॉर यूजर्स. तो जैसे यूजर सर्च करोगे आपको यहाँ पे यूजर्स आ जाएगा. आ गया ना, यू कैन सी हियर. क्लिक ऑन दैट यूजर्स नाउ. क्लिक किया, आई कैन गेट द यूजर्स. उसके बाद कहाँ पे जाना है मुझे, क्लिक ऑन द न्यू यूजर. सो यहाँ पे यू कैन सी क्लिक ऑन द न्यू. ऑलरेडी मेरे पास क्या है, राहुल है, राइट. ऑलरेडी आई हैव राहुल. एंड हियर वी हैव, यू कैन सी एक्सपोर्ट, चैटर एक्सपोर्ट, इंटीग्रेशन यूजर. ये आपके ओरिजिनल यूजर नहीं है, ये आपका सिस्टम डिफाइंड यूजर है. ये कोई एग्जैक्ट यूजर नहीं है, ये आपका सिस्टम, जैसे आप बोलते हैं रोबोट्स. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन से. They are not the actual user, they are the backend user, system user. You can say it's a robot. That's it. Fine. यहां से we can create a new user. Let's say कि मेरे client ने एक बंदे को hire किया, right? And he is a manager. वो क्या करेगा, मैं अगर राहुल डेवलपर है, तो राहुल क्या चाहता है कि मैनेजर भी, क्लाइंट इज गोइंग टू हायर ए मैनेजर, और वो मैनेजर ही राहुल जो भी डेवलपमेंट करेगा, राहुल मैनेजर विल टेक केयर. So let's create manager के लिए we can create an account. So I can click on this new user, right? I can click on this new user. I can provide the first name. Let's say I can provide here. Let's say Ashish. Ashish. You can see इसके बाद मुझे मैंने क्या दिया था, fill all required details. जो भी आपके red marks में है ना, ये details को fill करो. I can provide Ashish. I can provide what? Sharma. Alias name automatically आ जाएगा. email address will be correct Gmail address जहां पे उसको link जाएगा. So I can provide the email address. Let's take here we have something, this one, Rahul4abc. That is the email address. And username क्या होगा, उसका username I can provide here something Ashish something manager डाल दे, और ashish1212@gmail.com मैंने उसका यूजरनेम ये डाल दिया. Or I can, let's take something I can provide here, radical.com. Fine. Now, अभी उसका रोल क्या होगा, so he will be the Stern, he is handling Stern sales team. कौन सा उसको लाइसेंस कौन सा देना है, तो ऑब्वियसली बात है, we are only talking about the Salesforce license. तो सी यहाँ पे क्या एक Salesforce का लाइसेंस, मैं Salesforce का लाइसेंस दे दूंगा. Once we have given the Salesforce licenses, अब वो पूछे उसका प्रोफाइल है, वो आखिर ये बंदा जो है, ये आ रहा है, ये हायर किया गया है, इसको किस लिए हायर किया गया है. So what? So he is a manager, solution manager. So I can provide him the solution manager. So Ashish is a solution manager of Stern sales team. Ashish is a solution manager of Stern sales team. So everything I have filled. So I have filled just the required fields. Rest of the field, uske title, Mr., company, department, these are the optional field. If you want to fill it, you can fill it, or you can skip it also currently. Fine. But the required fields are filled here. Now what I can do, I can click on this save now. So जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, so ये जो आशीष का ईमेल एड्रेस है, आशीष को एक ईमेल जाएगा जहां से आशीष भी अपने पासवर्ड को सेट कर सकता है. Let's go for save it now. Save it now. See. Now you can see Ashish Sharma record is created. So we have one more user inside our Salesforce. Fine. Now see, if I click on that user, you can see here now Ashish Sharma is created. So here we have Ashish Sharma, here we have Rahul. Now we have two users and they both has consumed. दोनों ने ही क्या Salesforce license को consume कर लिया है. तो obvious सी बात है, हमने देखा था कि कंपनी इंफॉर्मेशन में सेल्सफोर्स कितने लाइसेंस थे, सेल्सफोर्स के 2 ही लाइसेंस थे. एक राहुल ने ले लिया और दूसरा आशीष ने ले लिया. तो क्या मेरे पास कोई लाइसेंस बचेगा? ऑफ कोर्स नॉट. चेक कर लेते एक बार. चेक करने के लिए वापस से हम जाएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर. आई कैन गो टू कंपनी इंफॉर्मेशन. फाइन. एंड यू कैन सी हियर द लाइसेंस. सेल्सफोर्स का लाइसेंस 2 था और दोनों ही यूज हो गए. बचे कितने? 0. मतलब 2 में से एक राहुल ने यूज किया और एक आशीष को मिल गया. बिकॉज राहुल कैन लॉग इन इनसाइड सेल्सफोर्स as well as Ashish can also log in inside Salesforce. Fine, everyone. So anyone has any query how we can create user inside Salesforce? Come on guys, let me know. Be frank, don't hesitate, please ask. Agar if you have any doubt, any question, you can ask guys, definitely. Come on,
Anyone? Come on, yes or no? Say at least. No, sir. No, sir. Fine. Sure. It's very easy. बहुत easy. कैसे अपन Facebook पे अकाउंट बनाते हैं वैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है. Simple. So we are in the initial phase. Now what I can do here? So अभी मेरे पास लाइसेंस तो बचा नहीं. So what I can do? I can go here. I can go for users. फिर से चेक करते एक बार जाते हैं users पे. Sorry, it's user. Fine. I can go inside users and you can see मेरे पास जो मैंने आशीष बनाया. तो लेट्स सी कि आशीष लॉगिन कर पा रहा है नहीं. तो सबसे पहले आशीष को, जैसे राहुल ने अपना पासवर्ड सेट किया था वैसे ऑब्वियस सी बात है आशीष को पासवर्ड सेट करना पड़ेगा. तो आशीष का ईमेल एड्रेस क्या है? अगर आप देखोगे तो आशीष का ईमेल एड्रेस, दैट इज द ईमेल एड्रेस ऑफ आशीष, rahul4abc समथिंग. सो चलते हैं. आशीष को डेफिनेटली उसके ईमेल पे एक लिंक गया होगा, चेक करते हैं. सो आशीष विल लॉग इन इनसाइड द जीमेल. सो लेट्स गो फॉर आशीष ईमेल एड्रेस. हियर वी हैव आशीष ईमेल एड्रेस, राइट. आशीष विल लॉग इन इनसाइड द जीमेल. वो अपने ईमेल पे लॉग इन करता है एंड ही विल चेक कि उसको ईमेल आया कि नहीं सेल्सफोर्स. सी उसको एक ईमेल आया है. फाइन. वेलकम टू सेल्सफोर्स. और ये आपका आशीष का ईमेल एड्रेस है, ashish1212@radical.com. ashish1212@radical.com. आशीष यहां से वेरीफाई करेगा, वो भी पासवर्ड सेट करेगा, रीसेट पासवर्ड. फाइन. यहां से आशीष भी अपना खुद का पासवर्ड सेट कर ले. सपोज लेट्स से आशीष ने अपना पासवर्ड सेट कर लिया. आशीष ने अपना पासवर्ड सेट कर लिया. फाइन. आशीष ने भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लिया. फाइन. he has given the security question answers and he has changed the password now. आशीष ने भी पासवर्ड चेंज कर लिया. Now see, आशीष has successfully logged in. उसी सेल्सफोर्स और में कौन लॉग इन हुआ? आशीष. कैसे हम वेरीफाई करेंगे? आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हो. क्लिक ऑन व्यू प्रोफाइल, आ गया आशीष शर्मा. इट मींस अभी आशीष भी अब सेल्सफोर्स में लॉग इन कर सकता है. आशीष अब देख सकता है कि सेल्सफोर्स में मैंने लॉग इन कर लिया, मेरे साथ साथ आखिर कौन है जो मेरे साथ काम करने वाला है. तो आशीष कैन गो इनसाइड सेटअप. ही कैन आल्सो गो फॉर द सेटअप. He can also go for the setup and he can see here users. Users. Fine. वो जाके users में चेक करेगा and he can see यहाँ पे okay here we have the users. ये आशीष ये कहेगा कि मैं तो हूं, मेरे साथ राहुल भी है. Rahul is also working here. But so guys see one more thing here. यहाँ पे कौन लॉगिन है? आशीष. यहाँ पे कौन था? यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कौन है? Here we have some. Let me go back. Okay, so here आशीष. Fine. So आशीष, अभी आप देखोगे आशीष के पास यहाँ पे यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है क्या? अभी जस्ट गिव मी कंफर्मेशन yes or no. क्या आशीष यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकता है? Yes or no? Come on. No. No, sir. No. You can only see कि हाँ भाई कौन कौन है. चैटर एक्सपर्ट है, राहुल है, मैं हूँ, इंडिकेशन है एंड सिक्योरिटी यूजर. आशीष ने चेक कर लिया. बट आशीष अगर कोई यूजर क्रिएट करना चाहे कैन नॉट क्रिएट बिकॉज ही इज नॉट ए डेवलपर. आशीष डेवलपर नहीं है, ही इज जस्ट ए मैनेजर. वो बस मैनेज करेगा, चेक करेगा कि राहुल क्या डेवलपमेंट करा है. ही कैन सी ओनली, ही कैन नॉट डू एनीथिंग. यहाँ पे वो कर नहीं सकता. बट इफ यू लॉग इन एज राहुल, लेट्स गो एंड लॉग इन एज राहुल. लेट्स लॉग आउट फ्रॉम आशीष. आशीष से लॉग आउट होते हैं and let's log in as Rahul. What is the Rahul email address? Let me go for that. Okay, here we have, I think, welcome. So that is Rahul email address or username you can say. तो यहाँ पे क्या किया? राहुल ने लॉग इन किया. You can see, हमने देखा कि आशीष के पास यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन ही नहीं है. Fine. So now जब राहुल यहाँ पे लॉग इन होगा, you can see now Rahul has logged in. कैसे पता चलेगा? आप जाओगे यहाँ पे चेक कर सकते हो. क्लिक ऑन दैट. कौन लॉगिन है? राहुल लॉगिन है. राहुल भी यूजर्स में जाएगा. He can also go to the users. Click on the users. But see, राहुल के पास he is getting that option creating new user. But ये ऑप्शन आशीष को आ ही नहीं रहा था. क्यों? Because Rahul is a developer. Now it's a very important guys. आखिर कैसे पता चला? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई बंदा डेवलपर है और कोई बंदा नॉन डेवलपर, मतलब वो डेवलपर नहीं है? एनीवन? यूजर तो मैंने राहुल का भी क्रिएट किया, यूजर तो मैंने आशीष का भी क्रिएट किया.
दोनों ही क्रिएट हुआ, बट राहुल क्या है, डेवलपर है, एंड ही हैज द एक्सेस, ही कैन क्रिएट ऑल दिस। बट आशीष के पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, क्यों? एनी सजेशन गाइस? एनी हिंट? एनी ट्राई? कम ऑन। Hello, sir. यस। So, because while creating Ashish's profile, we have given the license name as Solution Manager. Solution manager. So That's why there he was must be not. something difference in system manager. राहुल क्या है? राहुल is a system administrator. और आशीष क्या है? आशीष is a solution manager. So that is correct guys. So remember, कभी भी सेल्सफोर्स में अगर आपको डेवलपर बनना है, अगर आप कंपनी आपको हायर करेगी ना एज ए डेवलपर, तो हमेशा आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ही प्रोफाइल देगी, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही जो होता है ना, वो आपका डेवलपर होता है। अगर आप सिस्टम एडमिन नहीं हो, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अभी मैं अगर आशीष को यहाँ पे सिस्टम एडमिन बना दूं ना, तो ये भी डेवलपर बन जाएगा। सी, अगर मैं आशीष पे को एडिट करूं, एडिट करने के बाद अगर मैंने आशीष को सॉल्यूशन मैनेजर ना दे करके मैंने इसको सिस्टम एडमिन दे दिया, तो आशीष भी डेवलपर बन जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, क्लाइंट ने मुझे क्या बोला कि नहीं, आशीष इज ए मैनेजर। तो क्लाइंट ने मुझे बताया कि आशीष डेवलपर नहीं है, आशीष मैनेजर है, तो उसको डेवलपमेंट का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने उसको क्या दे दिया, सॉल्यूशन मैनेजर का एक्सेस दिया, बिकॉज आशीष इज नॉट ए डेवलपर। तो हमने उसको सॉल्यूशन मैनेजर। सो रिमेंबर गाइस, तो कल को कभी भी आपकी टीम बनेगी, आप 4-5 डेवलपर्स होंगे, तो अगर 4-5 डेवलपर्स होंगे तो डेफिनेटली सबके पास क्या, कौन सा एक्सेस होगा, सिस्टम एडमिन का एक्सेस। और अगर सिस्टम एडमिन का एक्सेस है, इट मींस यू आर अ डेवलपर एंड यू कैन डेवलप एन नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज इनसाइड सेल्सफोर्स। सो आई होप what is the use of system admin profile, I think आप सबको पता चल गया होगा। everyone just give me your confirmation, it's very important guys। Yes, sir. okay, so if you are a developer, definitely you should get a system admin profile। okay, but इसके अलावा सिस्टम एडमिन के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फीचर्स है सिस्टम एडमिन के। फाइन, यू कैन सी हियर। अभी एक बात बताओ, अभी अगर आशीष को सेल्सफोर्स में लॉगिन करना होगा तो क्या करेगा, वो ऑब्वियस सी बात है, जाएगा और लॉगिन करेगा। सो लॉगिन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू गो फॉर login.salesforce.com। सो गाइस, आई एक बार अपना अकाउंट बना लोगे, ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर login. जब भी करना होगा, यू हैव टू गो फॉर login.salesforce.com। लेट मी गिव यू दैट यूआरएल आल्सो इन द चैट बॉक्स, login.salesforce.com। फाइन। तो अब आशीष ने क्या किया, लॉगिन किया, आई कैन गो देयर। आशीष, हाँ फाइन। तो नाउ वी आर सेइंग दैट कि अभी आशीष को लॉगिन करना हो तो वो क्या करेगा, वो जाएगा किस पे, login.salesforce.com पे जाएगा। यहाँ पे वो अपना यूजर नेम डालेगा, राइट, यहाँ पे अपना वो यूजर नेम डालेगा, फिर वो पासवर्ड डालेगा और तब जाके वो लॉगिन कर सकता है, राइट एवरीवन। बट सिस्टम एडमिन के पास ऐसे पावर्स होते हैं कि वो किसी भी दूसरे यूजर में बिना पासवर्ड के लॉगिन कर सकता है। दैट इज व्हाट एडमिन एक्सेस, दैट्स व्हाई इट इज सिस्टम एडमिन। क्योंकि राहुल के पास ऐसे पावर्स हैं कि बिना आशीष से वो पासवर्ड पूछेगा भी नहीं और वो आशीष के अंदर लॉगिन हो जाएगा, एंड ही कैन सी व्हाट आशीष इज डूइंग इनसाइड द सेल्सफोर्स, कि आशीष सेल्सफोर्स में क्या कर रहा है, वो कौन सा रिकॉर्ड बना रहा है, कौन से रिकॉर्ड को उसने डिलीट किया, एडिट किया, मॉडिफाई किया, एवरीथिंग राहुल कैन सी। व्हाई? बिकॉज राहुल के पास क्या है, सिस्टम एडमिन का एक्सेस है। दैट इज द मोस्ट you can say it's a prioritized profile we have inside the Salesforce। कैसे? इट्स वेरी सिंपल। अभी आप देखो सबके पास क्या आ रहा है, एवरीवन कैन सी, सबके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है, सबके पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एक सेटिंग है दैट आई कैन एनेबल इट, सो आई कैन प्रोवाइड दैट हियर, सो आई कैन गो फॉर, लेट मी शो यू हाउ टू लॉग इन with any user, how to log in with any user। so इसके लिए क्या करना पड़ेगा, first we have to go for, just wait, first we have to go for here setup पे जाएंगे, पहले setup पे जाएंगे,
देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे, व्हाट सर्च करेंगे, लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज, लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज। फाइन, इसको पहले हम सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देन जब ये लॉगिन एक्सेस पॉलिसीज आएगा, वी कैन गो इनसाइड दैट एंड वी कैन व्हाट, enable the checkbox, enable the first checkbox, enable the first checkbox, that's it। तो अगर कभी भी मुझे किसी यूजर से लॉग इन विथ एनी यूजर विदाउट एनी पासवर्ड, लेट मी गिव दिस नेम, विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनी पासवर्ड, so what we have to do, we have to follow the steps। क्या है, और ये steps केवल और केवल सिस्टम एडमिन के लिए है, इसके अलावा और कोई नहीं है। सी इफ आई कैन गो देयर, अभी कौन लॉगिन है, ऑब्वियस सी बात है, अभी राहुल लॉगिन है जो कि सिस्टम एडमिन है, डेवलपर है। राहुल क्या करेगा, वो सेटअप पे क्लिक करेगा, सेटअप पे जाएगा, सेटअप पे जाने के बाद फिर कहां जाना है, अपने को सर्च करना है लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज। सो आई कैन प्रोवाइड हियर लॉग इन, सी आई एम गेटिंग लॉग इन एक्सेस पॉलिसीज, login access policies, click on that login access policies। और यहाँ पे एक लाइन है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, व्हाट आई हैव गिवन यू, दैट एनेबल द फर्स्ट चेकबॉक्स। कौन सा है फर्स्ट चेकबॉक्स, ये वाला, एडमिनिस्ट्रेटर कैन लॉग इन एज एनी यूजर। कौन कर सकता है, केवल और केवल सिस्टम एडमिन, कोई और दूसरा प्रोफाइल, कोई सॉल्यूशन मैनेजर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, इवन कंपनी का सीईओ भी नहीं कर सकता। ओनली एडमिनिस्ट्रेटर हैज एक्सेस टू लॉग इन एज यूजर। इसको बस एनेबल कर दो एंड सेव इट नाउ। इसको सेव कर लो, चेंजेस सेव्ड, सेव हो गया ना। नाउ सी हियर, नाउ यू कैन सी द मैजिक अगेन, वी कैन गो फॉर यूजर, सी वी आर इन द यूजर। फाइन, इस पेज को मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूं गाइस, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। फाइन, एवरीवन कैन यू सी ए ऑप्शन लॉग इन, यस और नो? Come on guys, can you see the option, login option? Yes, sir. ये आपका तभी एनेबल होगा जब आपने ये चेकबॉक्स को एनेबल करके सेव किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं लॉग्ड इन हूं किससे, राहुल से। अभी मुझे लॉगिन किससे होना है, आज चेक करना है कि आशीष क्या कर रहा है। मुझे आशीष ने क्या पासवर्ड सेट किया है मुझे नहीं पता, आशीष ने क्या पासवर्ड सेट किया है मुझे नहीं पता, और मैं उससे पासवर्ड मांग भी नहीं सकता, बिकॉज दैट इज नॉट ए लीगल थिंग इनसाइड ए कंपनी कि आप किसी से उसका पासवर्ड मांगो लॉगिन के लिए। But as a system admin, since I am a system admin, I can directly click on this login option and you can see without any password I can directly log in inside Ashish। अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे प्रोफाइल में, you can see कौन लॉगिन हो गया, आशीष। तो मुझे पासवर्ड भी नहीं चाहिए, आशीष को अपने ही अकाउंट में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए, बट मुझे आशीष के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए बिना पासवर्ड के आई कैन डायरेक्टली लॉग इन एंड आई कैन सी कि आशीष क्या कर रहा है अंदर। एवरीथिंग आई कैन सी नाउ, एवरीथिंग आई कैन सी। लेकिन क्या ये काम आशीष कर सकता है, बिकॉज आशीष इज नॉट ए डेवलपर, आशीष इज नॉट ए डेवलपर। चेक कर लेते हैं। तो आशीष भी क्या करेगा, ही विल ट्राई टू लॉग इन, सेम प्रोसेस आशीष भी ट्राई करेगा। आशीष विल प्रोवाइड हिज यूजर नेम, आशीष प्रोवाइड करेगा उसका पासवर्ड, अपना पासवर्ड प्रोवाइड किया, लॉग इन हियर, आशीष ने लॉग इन किया हियर, यू कैन सी। सो नाउ यू कैन सी अभी आशीष ने अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन किया है। फाइन, कैन सी कौन लॉग इन है यहाँ पे, आशीष। आशीष भी वही सोचेगा कि मुझे भी चेक करना है कि राहुल क्या कर रहा है। सो ही विल गो फॉर सेटअप, सेम ऑप्शन, वो भी जाएगा यहाँ पे सेटअप पे जाएगा, लॉगिन एक्सेस पॉलिसी सर्च करेगा पहले। तो पहली बात तो यहाँ पे अगर वो सर्च करेगा लॉगिन एक्सेस पॉलिसी तो उसको तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो डेवलपर ही नहीं है, तो वो ऑप्शन उसके लिए है ही नहीं। वो लॉगिन एक्सेस पॉलिसी उसको आशीष को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ही इज नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिन तो है ही नहीं, वो तो सॉल्यूशन मैनेजर है, और सॉल्यूशन मैनेजर के पास वेरी लिमिटेड एक्सेस होता है, ही कैन नॉट गो एंड सी ऑल दिस डिटेल। चलो यहां से उसने नहीं किया, बट वो यूजर्स में जाएगा, यूजर्स में जाके वो चेक करेगा यूजर्स में कि क्या उसके पास भी लॉगिन ऑप्शन है ताकि वो देख पाए। बट वो क्या देगा कि नो, इसके पास तो कहीं पे लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं है, वो एज ए राहुल लॉगिन कर ही नहीं सकता। एज ए राहुल ही कैन नॉट लॉग इन, इट मीन्स ओनली सिस्टम एडमिन हैज ए एक्सेस
to log in any user. ये फैसिलिटी, ये प्रायोरिटी केवल सिस्टम एडमिन यूजर को ही मिलता है. एंड सिस्टम एडमिन यूजर कौन है? राहुल इज अ सिस्टम एडमिन यूजर. एवरीवन, इज इट क्लियर? कम ऑन, दिस ऑल आर द बेसिक थिंग्स. और ये चीजें क्लियर हो गई ना. पहले बात तो अगर हमें यहाँ पे सेल्सफोर्स में एज ए डेवलपर काम करना है, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करना है, तो हमें अपने पावर्स के बारे में पता होना चाहिए. अभी हमें पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या क्या पावर्स है और एंड वी कैन स्टार्ट डेवलपमेंट. इट इज नॉट पॉसिबल ना. पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट पावर्स वी हैव. ठीक है, क्या क्या प्रायोरिटी मुझे मिली है सेल्सफोर्स के अंदर, क्या क्या मैं कर सकता हूं जो बाकी यूजर्स नहीं कर सकते, जो बाकी यूजर्स नहीं कर सकते. सो द ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट. Everyone, is it clear? Just give me a confirmation with yes or no. Yes, sir. Fine. चलो, so अभी फिर से लॉग आउट होते हैं हम आशीष से और फिर से लॉग इन होते हैं. ऑब्वियसली बात है डेवलपर प्रोफाइल से. लेट्स लॉग आउट फ्रॉम आशीष और लॉग इन होते हैं विथ आवर राहुल. सो आई कैन लॉग इन. सी, सो मैंने आशीष से लॉग आउट कर लिया एंड आई एम गोइंग टू लॉग इन एज राहुल नाउ. सी, हियर वी हैव द राहुल. इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है? यू कैन सी आई एम हियर वी हैव राहुल. और क्या बेनिफिट्स है? बहुत सारे बेनिफिट्स है सेल्सफोर्स एडमिन के. अभी आशीष क्या बोलेगा? सपोज आशीष इज ट्राइंग टू लॉग इन. लेट मी गिव यू एग्जांपल वन. सो आशीष लॉग इन पे गया. आशीष ने ट्राई किया लॉग इन करने का. ही हैज गिवन हिज यूजर नेम. उसने अपना पासवर्ड डाला, ट्राई टू लॉग इन, बट वो लॉग इन नहीं हो पा रहा है. एरर क्या रहा है उसको? प्लीज चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड. If you still can't log in, contact your system admin. और एक ही है सिस्टम एडमिन राहुल. इट मींस अगर ये लॉगिन जिसने एक बार ट्राई किया, फिर 2 बार इसने ट्राई किया, लॉग इन नाउ, स्टिल ही इज नॉट एबल टू लॉग इन इट हियर. सो लास्ट में तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सिस्टम एडमिन के पास कि मैं सेल्सफोर्स में लॉग इन ही नहीं कर पा रहा. कैन यू प्लीज चेक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मैं क्यों लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज वट एवर द यूजर नेम आई एम पासिंग दैट इज करेक्ट. पासवर्ड जो मैं पास कर रहा हूँ वो भी मैं आई एम थिंकिंग कि इट्स ए करेक्ट पासवर्ड, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू लॉग इन इनसाइड द सेल्सफोर्स. व्हाई? तो जैसे ही ये राहुल से पूछेगा या राहुल को मेल डालेगा दैट दिस इज माय यूजर नेम एंड आई एम नॉट एबल टू लॉग इन इनसाइड द सेल्सफोर्स. सो ये काम ऑब्वियस सी बात है, इट्स जस्ट ए मिनट वर्क. सो राहुल क्या करेगा? यहाँ पे राहुल लॉगिन है, वो चेक करेगा. ठीक है, मनीष लॉगिन नहीं कर पा रहा है, आशीष लॉगिन नहीं कर पा रहा है. आई कैन क्लिक ऑन दिस आशीष नाउ. तो वो आशीष पे जाएगा और स्क्रॉल डाउन करेगा एंड ही विल चेक हियर कि आशीष के पास नीचे क्या है? लॉगिन हिस्ट्री का ऑप्शन है. और वहां पे मेरे को दिख रहा है कि आशीष जो इसने 2 बार ट्राई किया है और दोनों बार इसने इनवैलिड पासवर्ड डाला है. मतलब जो पासवर्ड आशीष ने डाला है दैट इज नॉट ए वैलिड वन. So what I can reply him a mail that whatever the password you are trying to log in, that is not the valid one. That is not the correct one. So either you have to provide the valid password, then you can log in inside the Salesforce, or I have to reset your password. Salesforce admin के पास ये rights होता है कि वो किसी के भी पासवर्ड को reset कर सकता है. तो क्या करेगा आशीष? फिर से उसने फिर से एक बार ट्राई किया, but still he is not able to log in. फिर से ट्राई किया, फिर भी वो लॉग इन नहीं कर पा रहा है. सो एट द एंड आशीष ने क्या बोला कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन हियर. आई थिंक आई हैव फॉरगॉट माय पासवर्ड. कैन यू प्लीज रीसेट इट? कैन यू प्लीज रीसेट इट? तो ऑब्वियस ही है. तो आशीष एक बार रिफ्रेश करेगा, ही विल चेक कि उसने कितने बार पासवर्ड को इनवैलिड डाला है. यू कैन सी हियर कि वो यहाँ चेक करेगा कि इसने आशीष ने 3 बार इनवैलिड पासवर्ड डाला है एंड ही इज नॉट एबल टू लॉग इन. सो व्हाट आशीष विल डू? Ashish will go on, Rahul will go for Ashish. और आशीष के लिए राहुल क्या करेगा? राहुल इज सिस्टम एडमिन, ही कैन रीसेट द पासवर्ड. यहां से राहुल आशीष के पासवर्ड को लेट्स सी, क्लिक ऑन द रीसेट नाउ. रीसेट पासवर्ड फॉर दिस यूजर. ओके, सो राहुल ने क्या किया? उसके पासवर्ड को रीसेट कर दिया. अब क्या है पासवर्ड? ए न्यू पासवर्ड फॉर द फॉलोइंग यूजर हैज बीन सेंट वाया ईमेल. मतलब जो भी ईमेल है उसके ऊपर एक नया पासवर्ड का लिंक जा चुका है. द यूजर विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर ए न्यू पासवर्ड अपॉन एंड राइट. सो यहाँ से यूजर कैन चेंज हिज पासवर्ड. चेक करते हैं. अभी आशीष क्या करेगा कि आई हैव रीसेट योर पासवर्ड, चेक योर ईमेल.
सो आशीष जाके अपना वो ईमेल चेक करेगा. सो आशीष विल गो एंड चेक फॉर द ईमेल एंड सी उसको क्या आ गया कि उसके लिए पासवर्ड को रीसेट किया गया है, राइट? इसके लिए पासवर्ड, सो ही कैन क्लिक ऑन दिस लिंक और यहां से फिर से वो पासवर्ड अपना चेंज कर लेगा एंड ही कैन स्टार्ट लॉग इन वंस अगेन. यहां से फिर से वो पासवर्ड को चेंज करेगा एंड ही कैन स्टार्ट वर्किंग देयर. एवरीवन, आर यू क्लियर कि सिस्टम एडमिन के पास और क्या क्या एडिशनल एक्सेसेस हैं? कम ऑन, यस और नो? Come on guys, just give me a confirmation. Everyone? So guys, am I audible? Yukta, Rahul I can see, Khalid, Arya, sir, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, so guys, it's not too tough. बहुत easy है. अभी अब कोडिंग नहीं है तो इसमें तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. यहाँ वहाँ क्लिक करना तो सीखना पड़ेगा. वैसे ही फ्लिपकार्ट पे, फेसबुक पे यहाँ वहां क्लिक करते ही हो, यहाँ पे भी थोड़ा सा सीख लो क्लिक करना. दैट्स क्लिक करो, फंक्शनैलिटी डेवलप. यहाँ क्लिक करो, फंक्शनैलिटी डेवलप. दैट इज व्हाट हियर वी हैव Salesforce. दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड. तभी तो इसका क्लाउड का बेनिफिट है. फाइन. और क्लाउड ऑब्वियसली बात है, अगर आप CRM टूल की बात करते हो तो Salesforce इज नंबर 1 CRM इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. फाइन. नाउ लेट्स गो देयर. ये हो गया. इसके अलावा और क्या बहुत सारे. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. आपने देखा होगा, आप कभी भी किसी कंपनी में जॉब करते हो या फिर इवन इट्स नॉट अबाउट द कंपनी, इवन आप फ्लिपकार्ट हो, फेसबुक हो, या इवन आपको किसी भी एप्लीकेशन में आप लॉग इन करते हो तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, आपको पासवर्ड चेंज करना होता है ना. कभी कभी 3 मंथ के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है. किसी किसी कंपनी में होता है 2 मंथ्स के बाद यू हैव टू चेंज पासवर्ड. आपने एवरीवन सबने देखा है, आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, यू हैव टू चेंज इट नाउ. एवरीवन सबने कभी कहीं ना कहीं देखा है? Yes, sir. फाइन. सो वो पासवर्ड कौन सेट करता है कि आपको 2 मंथ में चेंज करना है, या मे बी 3 मंथ्स में चेंज करना है, या मे बी आपको 1 मंथ में, एवरी मंथ यू हैव टू चेंज इट. सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय सिस्टम एडमिन. यहाँ पे सिस्टम एडमिन कौन है? मैं हूँ. डेवलपर है सिस्टम एडमिन. सी हियर वी हैव डेवलपर, हियर वी हैव द सिस्टम एडमिन. ओके, so okay, let me go and log in as first Rahul. So here we have July. So now here system admin has logged in. फिर से system admin login हो गया. कोई system admin, obvious Rahul is a system admin. He is a developer. अभी यहाँ पे कंपनी ने एक रूल बनाया कि that Rahul, what we have said कि पहले से किसी ने सेट किया था कि every 3 months we have to set the password. बट हमें क्या करना है, कंपनीज के सारे एम्प्लॉयज को मजबूर करना है. इट मींस दैट एवरी मंथ ही हैज टू, एवरी 30 days ही हैव टू रीसेट हिज पासवर्ड. राइट, एवरी 30 days सबको अपना पासवर्ड चेंज करना है जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पस. सो ऑफ कोर्स as a developer it's my responsibility to set up all these things. So what we have to do here, we can go in quick find search box. We have password policies. I can go for the password policies and here we have the option. जो मैं सेट करूंगा वो मेरे सारे, अगर मैं TCS में काम करता हूं ना, अगर मैंने वहां सेट कर दिया तो मेरे Salesforce और में जितने भी यूजर्स होंगे 100, 200, 500, 1000, 10,000, everyone has to follow this rule. मैंने बोला कि no, every 30 days we have to, the password should be expire. हर 30 दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर होना चाहिए. लास्ट में आपने जो 2 पासवर्ड डाले, यू कैन नॉट यूज इट वंस अगेन. लास्ट 2 पासवर्ड्स यू कैन नॉट यूज इट. आपके पासवर्ड का लेंथ मिनिमम आपका 10 डिजिट्स का होना चाहिए. आपके पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी, या तो आप यहां डाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी डालो आप 10 डिजिट का, या आप डाल सकते हो कि मस्ट इंक्लूड अल्फा एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और यू कैन गो फॉर मस्ट इंक्लूड नंबर्स अपर एंड लोअर केस, or you can go for more complexity, must include number, uppercase and lowercase, and special characters. So it depends on the requirement. आप पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को सेट कर सकते हो और यही कॉम्प्लेक्सिटी आपके एम्प्लॉयज को डालनी होगी एवरी टाइम. फाइन. यहाँ पे क्या है आपका मैक्सिमम इनवैलिड अटेम्प्ट्स, मतलब कितनी बार अगर पासवर्ड गलत डालेगा वो, तो आपका सिस्टम क्या हो जाए, लॉक हो जाए. मैं बोलता हूँ अगर 3 बार अगर पासवर्ड गलत डाला गया, इफ मैक्सिमम इनवैलिड हम 3 टाइम्स, अगर पासवर्ड गलत डाला गया तो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाए, उसका अकाउंट लॉक हो जाए. और लॉक कब तक हो,
15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए, या फॉरएवर? फॉरएवर का मतलब क्या होगा? केवल सिस्टम एडमिन ही उसके बाद उसके पासवर्ड को अनलॉक कर सकता है। सी यहां पे भी सिस्टम एडमिन की प्रायोरिटी आपको दिख रही है कि अगर उसका पासवर्ड हमेशा के लिए लॉक होता है तो केवल एक ही बंदा है जो उसको अनलॉक कर सकता है, और वो है सिस्टम एडमिन। अदर देन सिस्टम एडमिन कोई भी उसके पासवर्ड को अनलॉक नहीं कर सकता अगर उसने 3 बार इनवैलिड अटेम्प्ट डाल दिया तो। सो गाइस, दिस ऑल आर इसको मैंने सेट कर दिया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये आपको अप्लाई हो जाएगा सारे यूजर्स पे जो भी मेरे सेल्सफोर्स के अंदर है। अगर 2 है तो दोनों पे अप्लाई होगा, 10 है तो ऑल 10 पे अप्लाई होगा, अगर 1000 यूजर्स हैं तो सारे 1000 एम्प्लॉयज पे ये इफेक्टिव हो जाएगा। And they have to follow all these rules. So that will also be decided by the Salesforce admin or system admin, you can say. Everyone, is it clear? Yes or no? Come on. Yes, Yes, or yes. no? Yes. Yeah. Anyone saying something? फाइन। नाउ अभी अगर आपको टेस्ट करना, यू कैन गो फॉर दैट। आप यहाँ पे इसको सेव कर लो और 3 बार आशीष से 3 बार इनवैलिड डाल के देखो, उसका सिस्टम लॉक हो जाएगा। ओके फाइन। नाउ सो दिस इज अबाउट द एडिशनल फीचर्स वी हैव ओनली फॉर एडमिन। फाइन, सो डोंट वरी गाइस। सो नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपसे एज ए सिस्टम एडमिन, what are the functionalities we are going to develop step by step। आज हमने देखा कि if I am a system admin, if I am a developer inside the Salesforce, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरे पावर्स क्या है Salesforce के अंदर। कल हम इसी पावर्स के साथ we can start developing the functionality। So guys, in today's session, if you have any query, any doubt, you can say everyone। So guys, one more thing, so everyone is in the WhatsApp group? Yes. Yes, sir. Because all these notes I'm going to share there, and I will provide the notes, assignment, and one more thing। So जो आज हमने user create किया है, मैं चाहता हूँ कि everyone from you create the user and share your screenshots in the WhatsApp group। I think, what is the group name? July batch। Here we have, so here we have the notes I will provide you। So guys, what I'm expecting, जो अगर आप इस ग्रुप में नहीं है, please go and talk to the Radical and इसमें ऐड हो जाओ। And here will, और कोई भी आपको डाउट होता है guys, here just share your query or doubts that you are not going to do it, and then we can go and solve it out also। ठीक है, चलो आज के सेशन में अगर किसी को कुछ पूछना है, you can ask everyone। Come on, feel free to ask guys। Hello, Balaji here. Yeah। Hi, this is Balaji. Actually, मुझे पूछना है कि ये सिलेबस कौन सा है सर? ये सिलेबस, इट्स अ सेल्सफोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको कोर्स के सारे डिटेल्स चाहिए, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर, सो दैट इज ऑन द रेडिकल वेबसाइट है, आप वहां से देख सकते हो। नहीं तो मैं आपको डाउनलोड करके आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नहीं, नो, दैट इज नॉट इशू। एक्चुअली मुझे बताया था कि AWS का ट्रेनिंग है, इसलिए मुझे नो, दैट इज नॉट AWS, इट्स अ सेल्सफोर्स ट्रेनिंग। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स, या थैंक यू सर। फाइन। एनी अदर्स गाइस, एनीवन? Come on, if you have any personal query also, you can ask me guys, because if you are, I think most of you are from the non-technical background or maybe non-coding background, so you can ask your queries guys, no worry, feel free to ask। Okay, so guys, no query I think you have, so no worry, if you have any further query now you can connect to the Radical and they will do the conference call, else agar aap group mein ho you can directly WhatsApp me also। Okay, so okay guys, so let's meet next session day after tomorrow। It's an alternate session for this week only, and then we'll continue from this topic once again। Okay, thanks all then, thank you, bye bye।